Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed chapter number 11. Now today we will start from the chapter number 13, that is algebraic expression. In this chapter, we will discuss about the introduction, algebraic expression, terms, and operation of an algebraic expression, find the value on expression. In the previous class, we have studied about the literal numbers and performed basic operation of addition, subtraction, multiplication and division. हमने प्रीवियस क्लास में बेसिक ऑपरेशंस देखे थे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के. We have also studied about some basic concepts of algebra in class 6. In this chapter, we shall study about algebraic expression which involves one or two variables. In this class, you will learn about algebraic expression of two or more variables. Right? We shall study how the operations of एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर परफॉर्म्ड ऑन एल्जेब्रिक. अब हम ये देखेंगे कि कैसे एल्जेब्रिक पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. वी आल्सो स्टडी अबाउट सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे, सिंपल linear equations in one variable, how to solve them. In algebra, there are two types of symbols, namely that is constant and variable. तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं algebraic expression में कि constant क्या होता है और variable क्या होता है. A symbol having fixed numerical value, अगर कोई symbol की fixed numerical value है तो उसे हम कहते हैं constant. For example, 1, 2, 3, 4. They all are the numbers and they are constants, right? Now what is variable? A symbol which takes various numerical values is called variable. For example, कोई भी number के साथ a, b, c, x, y, z, they all are variables. For example, we know that perimeter p of square of side L is given by, that is 4 into L. इन दिस एक्सप्रेशन जो 4 है वो क्या है, कांस्टेंट है, और जो P और L है वो वेरिएबल क्वांटिटीज है. वी ऑल्सो नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जो साइड्स L एंड B इज गिवन बाय, दैट इज पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 into L plus breadth. इन दिस एक्सप्रेशन 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और जो P L B है वो सारे क्या है, वेरिएबल्स है. राइट. नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कॉम्बिनेशन होता है किसका, कांस्टेंट टर्म्स का और वेरिएबल्स का, उसे हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हम इसको रेड करते हैं. अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द साइंस, और उनके साथ साइंस भी होते, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. All four fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division is known as algebraic expression. अगर आपसे कोई पूछ ले what is algebraic expression, you have to tell that is the combination of constant and variable terms with the following operations, that is addition, subtraction, multiplication and division. Right? For example, that is 2a 2 के साथ क्या है, वेरिएबल है, उसके बीच में ऑपरेशन लगा हुआ है, दैट इज प्लस. देन अगेन 5b 5 के साथ क्या है, b, दैट इज वेरिएबल. तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. राइट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म. अब टर्म्स क्या होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे. अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected with the operation of multiplication and division is called a term. जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल किससे कनेक्टेड होते हैं, ऑपरेशन से होते हैं ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसे हम कहते हैं टर्म. वी कैन आल्सो से दैट various parts of an algebraic expression which are separated by the sign of addition, subtraction are called the terms of expression. Right. हम इसको separation कैसे कर सकते हैं, with the help of sign, that is addition and subtraction. For example, 6xy,
ये क्या है, एक्सप्रेशन है और इसमें एक ही टर्म है विथ कांस्टेंट एंड टू वेरिएबल्स। मतलब 6 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और 2 वेरिएबल्स क्या हो गए, x और y। नाउ 4x plus 5y is an algebraic expression having two terms with two variables। अब इसमें क्या है, इस algebraic expression में क्या है, 2 वेरिएबल्स है, 9 क्या है, कांस्टेंट है, पर 4x स्क्वायर और 6x क्या है, x स्क्वायर और x है वेरिएबल और उनके साथ कांस्टेंट टर्म है। अब हम डिस्कस करेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्या होता है मोनोमियल, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन टर्म। अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है तो हम उसे कहते हैं मोनोमियल, अगर दो टर्म्स है तो हम कहते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, x के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर है और x है, तो राइट ये क्या हो गया, 7 माइनस 9 8x माइनस 9x स्क्वायर y, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। नाउ बाइनोमियल, जिसमें एक्सप्रेशन जो है वो कंटेन करता है टू टर्म्स को, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। थस टू मोनोमियल्स ऑन एडिशन गिव अ बाइनोमियल। जब दो मोनोमियल को हम ऐड करते तो हमें मिलता है बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट इज 2a माइनस 3b 5x प्लस 2y स्क्वायर, मतलब टू टर्म्स होनी चाहिए, राइट तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज बाइनोमियल। देन ट्राइनोमियल, the monomial added together but forming three different terms gives a trinomial। तो a plus b plus c, तो क्या थ्री टर्म्स होगी, a b 2, then 5x plus 7x स्क्वायर और y plus 6, तो ये कितनी टर्म्स हो गई स्टूडेंट्स, यू कैन सी 1 2 एंड 3, तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, राइट। इन जनरल एन एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। अगर कोई एक्सप्रेशन है उसके साथ एक और एक से ज्यादा टर्म्स है तो हम उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। थस मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये भी सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। व्हेन टू और मोर नंबर्स एंड लिटरल्स आर मल्टीप्लाई, क्या होता है जब दो नंबर या उससे ज्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं एक दूसरे से, जो उनका प्रोडक्ट आता है इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो फैक्टर होता है वो उस नंबर का प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट, अ कांस्टेंट फैक्टर इज नोन एज न्यूमेरिकल फैक्टर। जो कांस्टेंट टर्म है उसका फैक्टर होता है न्यूमेरिकल फैक्टर, एंड वेरिएबल को हम कहते हैं लिटरल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल इन एक्सप्रेशन यू कैन सी 7xy, तो 7x एंड y आर फैक्टर्स ऑफ 7xy। तो 7 क्या एक न्यूमेरिकल टर्म है और x और y क्या है, लिटरल फैक्टर, दैट इज नोन एज वेरिएबल, राइट। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट की। क्या होता है कोफिशिएंट, इन अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स of an algebraic expression any of the factors with the sign of the term। कोई भी algebraic expression में जिसके factors के साथ sign of the term, उसे हम कहते हैं coefficient of the product of the other factors। for example monomial, that is 7ab, so the coefficient of b is 7a, the coefficient of a, that is 7b, right, and the coefficient of AB is 7. Now in 6xy the coefficient of x, तो क्या हो जाएगा 6y, the coefficient of y is 6x and the coefficient of xy is 6, right। अब जैसे 7x स्क्वायर वाई जेड क्यूब है तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 7yz क्यूब। फिर अगर पूछ लिए y का क्या हो जाएगा तो 7x स्क्वायर और z क्यूब। अगर पूछ लिया जाए z क्यूब का क्या होगा तो 7x स्क्वायर y। ये सारे उसके क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। क्या होता है लाइक और अनलाइक टर्म्स, द टर्म्स which have the same literal factors
जिसके सेम फैक्टर्स होते लिटरल आर नोन एज लाइक टर्म्स और सिमिलर टर्म्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड दी अनलाइक टर्म्स। अभी मैंने आपको बताया कि लिटरल टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल को ही हम लिटरल फैक्टर्स कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल दैट इज 6ab, 10ab एंड 3ab, ये सारी क्या हो गई है, लाइक टर्म्स हो गई है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई एंड 22x स्क्वायर वाई, ये सारी क्या हो गई है, लाइक टर्म्स हो गई है। 6abc, 10abc एंड 15abc, ये भी सारी क्या हो गई है, लाइक टर्म्स हो गई है, राइट। 5x स्क्वायर, 10x स्क्वायर वाई एंड 6x स्क्वायर वाई, क्या ये सारी सिमिलर है, नहीं, तो ये हो गई है अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स जो होगी, जो सिमिलर नहीं होगी। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ द टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वन वेरिएबल। अब हम बात करेंगे डिग्री, राइट। द अबव एक्सप्रेशन हैज फोर टर्म्स नेमली एज 6a3 क्यूब, 7a स्क्वायर, 4a एंड 2। फर्स्ट क्यूब की टर्म आई है, देन स्क्वायर की, देन सिंगल टर्म, देन कांस्टेंट टर्म, राइट। तो जो पावर है जिसमें वेरिएबल क्यूब है, तो वो पहले आई है 3, देन 2, then 1 and then constant term. The power of variable 2 is 0 because 2 can be written as 2a0. जिसकी भी पावर 0 होगी वो हम उसको 1 कंसीडर करेंगे, right? The highest power of the variable in algebraic expression, उसे हम कहते हैं degree of an algebraic expression. Thus, the degree of 6a cube plus 7a square plus 4a plus 2 is 3. Similarly, the degree of 7a square plus 4a plus 2, 2 as the highest power in 7a square plus 4a plus 2, इसमें अगर हाईएस्ट पावर की बात करें दैट इज 2। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, ऐसे नहीं कि ये 2 है इसलिए, नो, इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की है। अगर इसमें भी हाईएस्ट डिग्री की बात करेंगे दैट इज 2। नाउ ऑल्सो द डिग्री ऑफ ए एक्स 4, तो अब अगर इसमें बात करूं कि हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज 4, राइट। नोटेड, it is noted that the degree of the constant is 0, right? Degree of the terms of an algebraic expression with two variables. अब हम डिग्री ऑफ टर्म की बात करेंगे जो algebraic expression होगा टू वेरिएबल्स के साथ, राइट। तो ये टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। द अबव algebraic expression have टू वेरिएबल्स, कौन कौन से, x और y, x और y। तो कितने वेरिएबल्स हो गए, टू वेरिएबल्स के साथ हम टू डिग्रीज की बात करेंगे, 1 degree and 2 degree, right? Sum of the powers of two variable is 10x square y is, तो ये क्या हो जाएगी, ये x की पावर क्या है 2, y की 1 है, तो 2 plus 1 ये क्या हो गया 3। So the degree of 10x square y is 3। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी डिग्री क्या है, तो x की पावर क्या है 2 और y की 1, 2 plus 1 is equals to 3। Now सम ऑफ द पावर्स ऑफ टू वेरिएबल इन टू एक्स वाई, अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, 1, 1 plus 1 is equals to 2, तो 2xy की डिग्री क्या है 2। सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इज 3y स्क्वायर इज 0 plus 2 that is 2। नाउ डिग्री ऑफ द कांस्टेंट 4 इज, जो कांस्टेंट टर्म्स होगी उसकी डिग्री क्या होगी 0। Therefore, the highest degree of a term in the above algebraic expression is 3. Thus, the degree of 10x square y plus 2xy plus 3y square plus 4 is 3. Right? Now move to the next, that is in algebraic expressions involving two variables, we add powers of both the variables. हम क्या करते हैं, अगर algebraic expression में variables इंक्लूड है तो हम क्या करते हैं, जो उनकी पावर्स होती है, बोथ द वेरिएबल्स होते हैं, हम उनको ऐड कर देते हैं ईच टर्म टू गेट द डिग्री ऑफ ईच टर्म। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द डिग्री ऑफ द एल्जेब्रिक expression. Now students,
solved examples is your homework. Now move to the next, that is that is exercise. पहले हम पिन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. A symbol having a fixed numerical value is known as constant. A symbol which takes various numerical values is known as variable. If variable multiplied by a number of times, it can express in exponential form. A combination of constant and variables connected by the signs of any or all of the four fundamentals operation उसे हम कहते हैं algebraic expression. A constant or a variable of a combination of a constant and a variable connected with the operations of multiplication and division, तो उसे हम क्या कहते हैं term. An algebraic expressions containing one term, तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल, राइट. और अगर algebraic expression में टू टर्म्स है तो हम उसे कहते हैं बाइनोमियल. Algebraic expression containing three terms, then we known as trinomial. And expressions with more term, उसे हम कहते हैं polynomial. When two or more numbers and literals are multiplied, then each or one of them and their product is known as the factor of the product. A constant factor is known as numerical factor and variable is known as literal factor. In a product of number and variable of an algebraic expression, any of factors with the sign of the term is known as coefficient of the product of the other factors. The term which have the same literal factors are known as like terms, otherwise वो क्या हो जाएगी unlike terms. The highest power of the variable in algebraic expression उसे हम कहते हैं degree of the algebraic expression. चलिए अब हम इसी के साथ हमारा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 को, दैट इज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ p इन द फॉलोइंग. राइट नाउ कोफिशिएंट ऑफ p, तो हमें ऐसे लिखना है स्टूडेंट्स, दैट इज आई विल सॉल्व 2 and 3 पार्ट्स एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स इज योर होमवर्क. तो हम ऐसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ p क्या है, दैट इज 4. Next, then coefficients of p, that is क्या हो जाएगा इसका, that is 6q square. Next, coefficients of p, तो क्या हो जाएगा -9q_r. right. Now 4th, 5th and 6th is your homework. चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं, दैट इज आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. तो हमें ये बताना है कि इसमें मोनोमियल कौन सा है. तो फर्स्ट वन क्या है हमारा मोनोमियल, सेकंड वन क्या है बाइनोमियल, सेकेंड वन भी क्या है बाइनोमियल. नाउ थर्ड वन क्या है, फोर्थ वन क्या है हमारा, फोर्थ वन इज दैट इज ट्राइनोमियल 1 2 and 3. तो ये हो गया ट्राइनोमियल. नेक्स्ट फिफ्थ वन क्या है हमारा, अगेन ट्राइनोमियल. नेक्स्ट सिक्स्थ क्या है हमारा, सिक्स्थ है हमारा मोनोमियल. नेक्स्ट 1 2 3 अगेन ट्राइनोमियल. नेक्स्ट 1 2 3 अगेन ट्राइनोमियल. नेक्स्ट टू टर्म्स बाइनोमियल. नेक्स्ट लास्ट वन क्या हमारा टेंथ, दैट इज मोनोमियल. चलिए
सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज थर्ड टर्म. थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बताना है? सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स बतानी है. राइट द कांस्टेंट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल. विच वन इज द कांस्टेंट टर्म? दैट इज 7. 7 के आगे क्या है? -7. 2x square minus a constant term, that is 3. Okay students, now move to the next. Now third one, that is next, p4 minus 2p square, that is 4p plus 6. 6. तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? इसकी कांस्टेंट टर्म क्या हो गई? 6. नेक्स्ट, ऐसे तो कांस्टेंट टर्म ये भी है बट इनके साथ वेरिएबल्स है. नेक्स्ट, 7 प्लस 3a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 6 है, इन सबके साथ वेरिएबल्स है, तो कांस्टेंट टर्म हो गई 7. नाउ आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. हमें क्या फाइंड आउट करना है? लाइक टर्म्स. तो स्टूडेंट्स इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हमें ये बतानी है. दिस वन इज द लाइक टर्म्स एंड दिस वन इज द लाइक टर्म्स. राइट, ये क्या हो गई है हमारी? ओके, दिस वन एंड दिस वन लाइक टर्म एंड y स्क्वायर क्या लाइक टर्म? ये लाइक टर्म नहीं है. नेक्स्ट, 4x स्क्वायर 6xy स्क्वायर 9x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y. तो लाइक टर्म एंड लाइक टर्म. तो ये 4 क्या हो गई? लाइक टर्म हो गई. नेक्स्ट, 5xy प्लस 6xz प्लस 2y प्लस 3xz अपॉन 2. तो लाइक टर्म कौन सी हो गई? 6xz एंड 3xz अपॉन 2. दे बोथ आर दी लाइक टर्म्स. फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 9a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 5ab स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2ab माइनस 4 अपॉन 5ab स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स इसमें लाइक टर्म क्या हुई है? दैट इज एक तो 3 अपॉन 5ab स्क्वायर एंड 4 अपॉन 5ab स्क्वायर. राइट. नेक्स्ट, 3ab and 5 upon 2ab. Next, a square b square and 9a square and b square. तो इसमें सारी ही क्या हो गई है? हमारी पूरी टर्म ही क्या हो गई है? लाइक. तो सबसे पहले हो गई 3ab के साथ 5 upon 2ab. देन 9a स्क्वायर b स्क्वायर उसके साथ हो गई है, दैट इज -9a स्क्वायर b स्क्वायर. देन 3 अपॉन 5ab स्क्वायर एंड -4 अपॉन 5ab स्क्वायर. पहले ये वाली टर्म्स आएगी a और a, देन a स्क्वायर, देन a स्क्वायर, देन लास्ट टर्म दिस वन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग. मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करके बता देती हूँ आपको कैसे करना है. सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट? दैट इज ऐसे लिखना है आपको एक्स स्क्वायर देन प्लस 6x स्क्वायर. फिर आपको ऐसे लिखना है y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर. राइट, आपको इसको ऐसे लिखना है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. और इन सबके बीच में आपको क्या यूज करना है? कॉमास यूज करनी है. राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. आपको अब क्या लिखना है इस क्वेश्चन में? यू हैव टू राइट द टर्म्स. राइट, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें टर्म्स अलग अलग करके लिखनी है, कुछ नहीं है. 6x एंड 9xy.
तो आप कैसे लिखोगे इन टर्म्स को, 6x कॉमा करके लिखोगे, राइट। इसमें आप कैसे लिखोगे 7/6x, पहले x आता है, पहले x आता है फिर y, तो ऐसे लिखोगे 6x 7y then 9z, right? Third and fourth is your homework. Okay, if you want to take screenshot, पहले x की टर्म आती, y की टर्म, देन z की टर्म, तो मैंने अलग अलग टर्म्स को लिख दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, down the degree of each term of the algebraic expression, write the degree of each of the following। इस क्वेश्चन में हमको डिग्रीज लिखनी है, राइट क्या लिखनी है, डिग्रीज। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके बता देती हूँ एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स इज योर होमवर्क। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ ईच एक्सप्रेशन, मतलब ईच एक्सप्रेशन, इसका भी देन। तो सबसे पहले इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 1 देन 3, देन वी हैव टू यूज दी सेमीकोलन क्योंकि इनके बीच में माइनस का साइन है, देन अगेन 3, राइट। देन इसका हो जाएगा 1 देन कॉमा, देन अगेन इसका हो जाएगा दैट इज 1, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 0 क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के लिए हमने क्या बोला था, दैट इज 0 1 देन 4 अगेन सेमीकोलन देन 4, राइट। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इज योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, राइट योर होमवर्क, दैट इज थर्ड फोर्थ fifth sixth is your homework। Okay students, now move to the next exercise, that is 12.2। अब हम चलते हैं हमारी 12.2, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज 12.2। नाउ ऐड द फॉलोइंग, अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, राइट। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, हम इसको नोटबुक में कैसे करेंगे, एक्सरसाइज 12.2, ऐड द फॉलोइंग। तो फर्स्ट के 5x 7x, तो 5x और 7x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, राइट। नाउ मूव टू द सेकेंड, दैट इज 4m 5m, 4m 5m, तो 4m plus 5m is equals to 9m। नेक्स्ट, नाउ थर्ड को हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज a स्क्वायर 5a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम पहले क्या करेंगे, इसको हम पहले इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर, राइट, इनके बीच में माइनस का साइन 9a स्क्वायर, तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स दैट इज 6a स्क्वायर, राइट। तो अब इसके बीच में माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर, किसका, माइनस का, क्यों 9 क्या है, बड़ा है, तो उसके आगे किसका साइन है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर। नाउ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इज योर होमवर्क। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट आई विल सॉल्व फॉर यू एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स इज योर होमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग।
क्या है हमारा? सबसे पहले 9x प्लस 6y, 9x प्लस 6y, देन प्लस 3x माइनस 2y। तो करते इन दोनों को x की टर्म को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12x, देन प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये 12x प्लस, हमने इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया, देन 6y माइनस 2y। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस, 6 माइनस माइनस, तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे? दैट विल बी 4x, 4y, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? 12x, इसके ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है? प्लस का, तो ये क्या हो गया? 12x प्लस 4y, और इसमें से हमने क्या किया? 6y माइनस 2y, तो यही हो गया हमारा आंसर। नाउ second and third is your homework. In our next video we will start from the third question. Okay students, that's all for today. Thank you class.